Hello everyone, welcome you all on your channel Ravneet Study Corner. So as you all know that we are doing physics, and in this particular series we are doing nuclear physics in accordance with the syllabus of the Master Cadre Science. So as you all know ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਕੇਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪ ਮਾਡਲ, ਸੈਮੀ ਇੰਪੈਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਡਿਊਟਰਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮਾਸ ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਨੋਨ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੌਪਿਕ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਵਾਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਬਾਈ ਨੀਲਸ ਬੋਹਰ। ਔਰ ਨੀਲਸ ਬੋਹਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਐਨਾਲੋਗਸ ਟੂ ਅ ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪ। ਮਤਲਬ ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਥਰੂ ਕੋਹੈਸਿਵ ਫੋਰਸਿਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡ੍ਰੌਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਡ੍ਰੌਪਸ ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਆਫ ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਫੋਰਸਿਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡ੍ਰੌਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਰਿਗਾਰਡਡ ਐਜ਼ ਐਨਾਲੋਗਸ ਟੂ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਅਰਲੀਅਰ। ਐਂਡ molecule in liquid are held together by cohesive forces of course and density of the liquid drop। okay, so ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਲਾਈਕ 10⁻17 kg/m³। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲੋਗਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹਰ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਡਲ ਬੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਰ ਕਿ ਆਲ ਨਿਊਕਲੀਆ ਆਰ ਕੰਸੀਡਰ ਟੂ ਬੀ ਦੀ ਇਨਕੰਪਰੈਸਿਬਲ ਡ੍ਰੌਪਸ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਪਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। So they are incompressible in nature and nuclei is spherical in shape due to the symmetrical surface tension forces। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਵੀ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਇਜ਼ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਦੀ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਆਫ ਵੇਪਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਿਸ is the assumptions। so ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ that is semi empirical formula। so semi empirical mass formula was formulated by C.F. Weizsäcker। pronunciation अपने अपने according देख लियो। and total binding energy of the nucleus is given by B। this relation B equals to ZMP plus A minus ZMN minus capital M nucleus dot C square। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਮ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਮਾਸ ਆਫ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਮਾਸ ਆਫ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਦਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸੈਮੀ ਇੰਪੈਰੀਕਲ ਮਾਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਮਾਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਐਨਰਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ 5 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਇਹ 5 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਬੀ ਵੋਲਿਊਮ binding energy because of volume, surface, coulomb, symmetric and pairing। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 5 ਟਰਮ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਦਿਸ ਟਰਮ ਆਫ ਬੀ ਇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਐਨਰਜੀ, ਵੋਲਿਊਮ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਐਨਰਜੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ it is summarizing all the 5 binding energies like volume, surface, coulomb, symmetric, asymmetric and pairing। so the relation of volume binding energy with respect to mass number is directly proportional। मतलब volume binding energy is directly proportional to mass number and it is positive and the main contribution ਹੈਗਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੇਅਰਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣ। ਓਕੇ,
सो इस बारे असी अगे गल करांगे। एंड सरफेस बाइंडिंग एनर्जी इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 2/3 एंड इट इज़ नेगेटिव। कूलम एनर्जी इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर -1/3 एंड इट इज़ ऑल्सो नेगेटिव। एसिमेट्रिक बाइंडिंग एनर्जी इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू a-2z² upon a and it is also negative. So pairing energy and odd even effect we इन्हों बोलते हैं, it is directly proportional to a raised to power -3/4 and it can be positive and negative depending upon the values of proton and neutron, number of proton and neutron. Okay, सो हेयर आर फर्स्ट बाइंडिंग एनर्जी दैट इज़ वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी। और ਇਹਦਾ एक चीज़ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾइंडिंग एनर्जी ਦਾ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾइंडिंग एनर्जी ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी ਕਿਉਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵॉल्यूम ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਨਸ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਨਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਮਾਸ ਨੰबर। ਸੋ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास नंबर एंड वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी। सो ग्रेटर विल बी दी वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी। आई होप तुसीं सारे वेख रहे होवोगे स्क्रीन ते। So it says volume binding energy arises due to the number of nucleons as the number of mass number corresponds to total number of nucleons in it. And the relation BV equals to AV dot A where AB is a constant. So now surface binding energy. So surface nucleons have fewer nearer neighbor than the nucleons। मतलब ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਈਕੁਅਲ, ਵੇਅਰਐਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਨਵਰਡ ਪੁੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਰਡ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸਿਸ ਮਤਲਬ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫੋਰਸ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਰਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, so this factor gives rise to slight reduction in the total binding energy which is proportional to the number of nucleon on the surface, that is surface area of the nucleus. So BS is directly proportional to a raised to power 2/3 and ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ formula ਹੈਗਾ that is BS equals to -AS a raised to power 2/3 where a small s is a proportionality constant. Now Coulomb binding energy. Since proton inside a nucleus will experience mutual electrostatic repulsion resulting in decrease in binding energy and ਇਹ ਜਿਹੜੀ Coulomb binding energy ਹੁੰਦੀ ਹੈ disruptive nature ਹੁੰਦਾ and may be got by considering binding energy of a uniform charge sphere. So BC is directly proportional to a raised to power -1/3 and where AC is a proportionality constant. तो ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲਾਈਟ ਨਿਊਕਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਹੈਵੀ ਨਿਊਕਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਜਾਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਸੋ BA ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ a raised to a -2z² upon a. So A is a proportionality constant. I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰੋਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੈਰਿੰਗ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਔਡ ਈਵਨ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ऑड इवन इफेक्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज न्यूक्लियाई विद even number of proton and even number of neutron are considered to be more stable, whereas with odd number of proton and odd number of neutron are considered to be least stable, and the nuclei with even number of proton or odd number of neutron and vice versa is considered to be intermediate stability, having intermediate stability. So as you can see, BP is a pairing binding energy where delta is a pairing term, as you can see in positive A delta upon A raised to power 3/4 where delta is a pairing term, and similarly when both the terms are odd, like odd
proton and odd neutron, and it is minus a delta upon a raised to power 3 by 4. And when both the terms like one is even and one is odd and vice versa, then pairing binding energy doesn't exist. Okay, so to sum up, I can say write all the terms here, and only term which is positive is volume binding energy, and I'm writing it in the first place and subtracting others. So as you can see, m nucleus is zmp plus a minus zmn minus 1 upon c में स्टार लिखा होया, एंड स्टार जिहड़ा उपर वाली टर्म नू रिप्रजेंट कर रहा है। सो पूरी टर्म नू असीं उस ब्रैकेट विच लिखना जिते स्टार लिखा होया। इस मॉडल दियां भी काफ़ी सारियां लिमिटेशनस सीगियां, बट जिहड़ियां मेजर लिमिटेशनस सीगियां वो यही सीगियां कि ये मैजिक नंबर नू एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता मैजिक नंबर की हुंदे ने, जिन्हां दी स्टेबिलिटी, जिहड़े न्यूक्लियॉन्स दी स्टेबिलिटी, न्यूक्लियाइज दी स्टेबिलिटी सॉरी, बहुत एक्सट्रीम हुंदी है एज़ कंपेयर टू देयर नेबरहुड, और उन्हां नू असीं कहने आ मैजिक नंबर। So it failed to explain the existence of the magic number or greater stability of the magic number, and it also failed to explain the nuclear spin and magnetic moment. Okay, सो ये जी इक्वेशन हैगी है जी मैं लिमिटेशनस के उपर लिखी है एम न्यूक्लियस की, ये याद रखनी है। ये नैक्सट साडा जिहड़ा टॉपिक है मास पैराबोला उहदे विच यूज़ होनी है। सो सिलेबस में जिहड़ियां एप्लीकेशनस हैगियां सैम इंपेरिकल मास फार्मूला दियां वो भी हैगियां। सो मास पैराबोला भी एक एप्लीकेशन ही हैगी है सैम इंपेरिकल मास फार्मूला दी। सो जिहड़ा मैं लास्ट इक्वेशन बोली सी, अगर उन्होंने असीं सॉल्व करके लिख लीए तो ये वाली इक्वेशन बनेगी एम zA इक्वल्स टू ए ब्रैकेट mn माइनस ए वी माइनस ए माइनस ए एस अपॉन a raised to power 1 by 3 ब्रैकेट क्लोज एंड सिमिलरली अदर टू। और अगर मैं इनू अल्फा बीटा एंड गामा कंसीडर कर लैनी है जी कॉन्सटेंट गिवन है, सो साडी जी इक्वेशन बन जाएगी एम zA इक्वल्स टू अल्फा ए प्लस बीटा जेड प्लस गामा जेड स्क्वेयर प्लस माइनस डेल्टा, वेयर डेल्टा इज द पेयरिंग टर्म कैन बी 0 and can be not equals to 0. So ये जी इक्वेशन स्टार बनी है, इट रिप्रजेंट्स द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो जिस तरह आप डायग्राम वेख रहे हैं, सो अगर प्लस एक्स एक्सिस वाल नूं जांदा तो बीटा पॉजिटिव एमिशन होएगी, और अगर नेगेटिव एक्स एक्स वाल नूं जांदा तो बीटा नेगेटिव एमिशन होएगी। सो इत्थे लिखा भी होया डेल्टा इज़ अ पेयरिंग टर्म दैट कैन बी इक्वल्स टू 0 और नॉट इक्वल्स टू 0। सो इहदा बस यही है, ज़्यादा इलैबोरेट करांगे तो बहुत वड्डा टॉपिक हैगा कि दो केसिस बन जाते हैं वैन पेयरिंग टर्म कैन बी इक्वल्स टू 0 एंड कैन नॉट इक्वल्स टू 0। सो इन्ना ही असी करना है कि इक्वेशन रिप्रजेंट कर दी है पैराबोला टर्म्स नू, अल्फा बीटा गामा नू असी याद कर सकते हैं। और एक होर चीज़ हैगी है दैट वी कैन यूज़ सैम इंपेरिकल फार्मूला मास फार्मूला टू फाइंड द मोस्ट स्टेबल आइसोबार। सो आई होप तुहानूं आइसोबार, आइसोटोन, आइसोटोप्स, आइसो इलैक्ट्रॉनिक ये सारा पता होणगे। सो आइसोबार्स की हुंदे जिहड़े सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर हुंदा है, और दिस इज़ द फार्मूला Z इक्वल्स टू A अपॉन 2 प्लस 0.0156 a raised to power 2 by 3। सो ये फार्मूला याद कर लेना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है टू फाइंड द मोस्ट स्टेबल आइसोबार। सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राउंड स्टेट ऑफ द ड्यूट्रॉन। इट इज़ एज इट इज़ मैंशन इन आवर सिलेबस। So the deuteron wave function is phi s plus phi d, where s and d is the states। असी states मान के चलते हैं, s and d states नहीं हैं, with total angular momentum I equals to capital L, and normalized wave function gives as as square plus ad square equals to 1. Okay, so observed value of magnetic moment and electric quadrupole moment are such that they required 3% 3% 9 probability of the existence of the deuteron in 3d1 state and 96.1% in 3s1 state। सो इहदा जिहड़ा क्वेश्चन आंदा है ये इस तरह आ सकता है कि ड्यूट्रॉन स्टेट ग्राउंड स्टेट है जी ड्यूट्रॉन दी वो की है, एक प्योर स्टेट है। सो नहीं, प्योर स्टेट तो नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू स्टेट, कुछ टू स्टेट्स का मिक्सचर है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितना टाइम, किन्ने परसेंट टाइम वो के स्टेट विच रहिंदा और किन्ने परसेंट टाइम दूसरी स्टेट विच रहिंदा। सो 96.1% टाइम स्पेंड करदा 3s1 स्टेट विच, वेयर एज 3d1 स्टेट विच कितना टाइम रिप्रजेंट करदा, दैट इज़ 3.9% टाइम। सो इनू कई बार 96 या 4 मतलब अप्रॉक्स करके देख लीए तो 96 ते 4 भी कंसीडर किया हुंदा कई क्वेश्चन विच, पॉइंट विच नहीं हुंदा। सो नैक्सट टॉपिक किहड़ा हैगा साडा नॉन सेंट्रल फोर्सिस। सो सेंट्रल फोर्सिस सानू पता किहड़ियां हुंदियां, वी नो द सेंट्रल फोर्सिस दैट एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। ओके,
So non-central forces ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? Those forces that are not directed along the line joining the center of the two bodies. So it is a classical point of view ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, don't act along the line joining the center of two bodies, or central forces those which act along the line joining the center of two bodies. So quantum mechanical point of view ਕੀ ਹੈਗਾ? So it says it implies that under the effect of the orbital moment orbital angular momentum ceases to be an integral part of the motion. मीनस ਜਿਹੜਾ नॉन सेंट्रल फोर्सिस दे एक्ट अंदर या अफेक्ट अंदर ਜਿਹੜਾ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है सीजेस टू बी एन इंटैगरल पार्ट, मतलब इंटैगरल पार्ट बन जाता मोशन का। सो एग्जाम्पल्स ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ नॉन सेंट्रल फोर्सिस ਦੀਆਂ? वीक फोर्सिस, न्यूक्लियर फोर्सिस जिन्हों ਨੂੰ ਆਪਾਂ स्ट्रोंग फोर्सिस कहने हैं, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन सेंट्रल फोर्सिस। सो आर अनदर टॉपिक इज़ मेजॉन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सिस। सो इस जी थ्योरी ही इन्हें एक्सप्लेन किया न्यूक्लियर फोर्सिस का कॉज की, मतलब न्यूक्लियर फोर्सिस जो एग्जिस्ट कर रही हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो उन्होंने कारण की है। सो इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स केम इन टू एन एग्जिस्टेंस वैन देर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल। सो एक एक्सचेंज होंगे पार्टिकल का, वो पार्टिकल केड़ा है, किन्ने टाइम लिए एग्जिस्ट कर सकता है, कैन वी डिटेक्ट दैट पार्टिकल, कैन वी सी दैट पार्टिकल। सो ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां एक्सप्लेन कीतियां। सो फर्स्ट जिहड़ा साइंटिस्ट सीगा वो सीगा युकावा। सो युकावा साइंटिस्ट सीगा, जैपनीज साइंटिस्ट सीगा। सो इन्हें एक्सप्लेन किया सीगा कि देर इज़ अ फोर्सिस जिन्होंने मतलब जिहड़ियां एग्जिस्ट कर रही ने, जिहदी वजह करके न्यूक्लियर फोर्सिस हैगियां ने। सो ऑल द न्यूक्लियंस कंसिस्ट ऑफ द सेम सॉर्ट ऑफ कॉमन कोर कंसीडर्ड बाय अ पल्सेटिंग क्लाउड ऑफ पाई मेजॉन्स हैविंग पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो चार्जेस। सो मतलब जिहड़ा मेजॉन्स। So soon after Yukawa's theory, an American physicist Carl Anderson detected a particle. उन्हें एक particle detect कर देता having mass 270 times that of the mass of the electron, both in positive and negative form। मतलब जिहड़ा agreement करदा सीगा Yukawa's theory ਨੂੰ मतलब बल दिंदा सीगा कि हाँ Yukawa ने जो किया वो सही किया। There exists a particle that is 270 times the mass of the electron, और मतलब वो pulsating nature ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ डिटेक्ट नहीं कर सकते। मतलब वो एकदम एक जिस तरह कह रहे कहने जिस तरह मतलब कि अगर दो बच्चे बॉल नाल खेल रहे होण ते एक दूसरे वाल बॉल फेंक रहे होण और इन्नी जल्दी जल्दी फेंक रहे होण कि असीं डिटेक्ट ना कर पाइए कि किस टाइम ते वो बॉल किस बच्चे कोल है। सो यही मतलब बेस बनिया मेजॉन थ्योरी का कि असीं इक्को टाइम ते डिटेक्ट नहीं कर पा रहे कि वो मतलब जिहड़ा एक्सचेंज हो रही है ना दोनों पार्टिकल्स दे विच, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हैगी है, ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਜ਼ੋਨਸ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੇਜ਼ੋਨਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੋਨ ਆਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਐਮਿਟਿੰਗ ਐਂਡ ਅਬਜ਼ੋਰਬਿੰਗ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰਲ ਮੇਜ਼ੋਨਸ ਸੱਚ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਊਟਰੋਨ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਮਿਟ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਿਊਟਰੋਨ और पाई पॉजिटिव ऐड होंगे तो प्रोटोन बनाते हैं। जो न्यूट्रॉन एमिट करता तो प्रोटोन बनाता तो पर एमिट की करता पाई नैगेटिव। हुण असी अगर एक चीज़ देखिए तो चार्ज की अगर कंजरवेशन देखिए, जो एक साइड ते प्रोटोन है मतलब +1 चार्ज है तो दूसरी साइड ते न्यूट्रॉन प्लस पाई पॉजिटिव है। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना 0 एंड पाई पॉजिटिव का चार्ज कितना पॉजिटिव, मतलब चार्ज कंजर्व रह रहा है, उधर भी +1 तो दूसरी साइड भी +1। सो अगर असी दूसरी इक्वेशन तो देखिए, सो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम का साइन है, मतलब पल्सेटिंग नेचर है, जल्दी जल्दी उधर कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन, तो जल्दी जल्दी वो प्रोटोन वापस न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है विद दी एब्जॉर्बेंस ऑफ पाई नैगेटिव। सो अगर असी इत्थे देखिए, इत्थे भी चार्ज जिहड़ा कंजर्व है, न्यूट्रॉन वाली साइड कितना चार्ज है 0। अगर दूसरी साइड देखिए पी पॉजिटिव मतलब प्रोटोन तो कितना चार्ज है +1 एंड पाई नैगेटिव तो कितना चार्ज है -1, +1 -1 0। सो दोनों साइड चार्ज कितना है 0। सो अगर थर्ड वाली इक्वेशन से देखिए, सो पी इक्विलिब्रियम का साइन पी बार प्लस पाई 0, मतलब पी बार है जोड़ा वो भी मतलब प्रोटोन ही है, मतलब दूसरा प्रोटोन है, और इस बार जोड़ा एब्जॉर्ब किया दैट इज़ पाई 0, मतलब चार्ज कंजर्व है, और फोर्थ विच भी सेम थिंग है। सो एक चीज़ जी सामने आई है, मतलब चार्ज कंजर्व रह रहा है, जल्दी इक्विलिब्रियम का साइन है, मतलब जल्दी वो इधर कन्वर्ट हो रहा, फिर वो फॉरवर्ड डायरैक्शन फिर वो बैकवर्ड डायरैक्शन, मतलब इन्ना जल्दी काम हो रहा कि पल्सेटिंग नेचर जिमें लबडब होंगे कि एकदम पता नहीं चल रहा, वी कांट डिटेक्ट। सो इस करके इन्हों वर्चुअल मेजॉन्स भी कहते हैं। आई होप तुहानूं मेजॉन थ्योरी क्लीयर होई होगी।
सो अगर कोई प्रॉब्लम होएगी तो कमेंट सैक्शन में यू कैन आस्क कि कुछ भी क्वेश्चन अगर अपना। सो साडा जिहड़ा नैक्सट टॉपिक हैगा दैट इज़ न्यूक्लियर फोर्सिस। सो सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ पता कि न्यूक्लियर फोर्सिस की ਹੁੰਦੀਆਂ। सो एग्जाम ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ दैट इज़ फीचर्स ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सिस। सो ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। सो देयर आर ਅਪਰੋਕਸ 7 ਫੀਚਰਸ ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सिस। सो वन बाय वन ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। सो न्यूक्लियर फोर्सिस आर दैट इज़ स्ट्रोंगेस्ट फोर्सिस इन द नेचर। सो अगर असी रैलेटिव स्ट्रेंथ की गल करिए तो न्यूक्लियर फोर्सिस में अगर मैं 1 कंसीडर करती हाँ तो इलैक्ट्रोमैग्नैटिक फोर्सिस 10 टू पावर -2, वीक फोर्सिस 10 टू पावर -15 और ग्रेविटेशनल फोर्सिस 10 टू पावर -38। सो मतलब अगर असी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर च लगाना होए या क्वेश्चन आवे सानू तो असी लगा सकते हैं न्यूक्लियर फोर्सिस सब तो स्ट्रोंगेस्ट ने और ग्रेविटेशनल वीकेस्ट ने, वेयर आर इलैक्ट्रोमैग्नैटिक एंड वीक फोर्सिस आर इन बिटवीन न्यूक्लियर फोर्सिस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सिस। सो नैक्सट जी साड़ी इहदी प्रॉपर्टी हैगी है दैट इज़ शॉर्ट रेंज फोर्सिस। सो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि ये न्यूक्लियस के अंदर ही मतलब एक्ट करती हैगी है। सो अगर न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करती है सो सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि रेडियस कितना होंदा, 1 फर्मी होंदा रेडियस। और अगर डायामीटर की गल की जाए तो 2 × 10 टू पावर -15 मीटर मतलब 2 फर्मी, मतलब डायामीटर तक ही शॉर्ट रेंज जड़ियाँ इफेक्टिव होंदियां न्यूक्लियस दे। सो इस करके जो डिस्टेंस है जिहदी अप टू शॉर्ट रेंज फोर्सिस आर इफेक्टिव दैट इज़ 10 टू पावर -15 मीटर। सो सैचुरेटेड फोर्सिस किहड़ियां होंदियां ने, मतलब सैचुरेटेड फोर्सिस ने न्यूक्लियर फोर्सिस मतलब एक वैल्यू तो बाद जाके एक कॉन्सटेंट वैल्यू शो करने लग पैंदियां। सो वो वैल्यू किहड़ी है A> 40 तो बाद जाके जिहड़ियां साडियां न्यूक्लियर फोर्सिस आ कॉन्सटेंट हो जांदियां। मतलब जिद्दां जिद्दां न्यूक्लियस साडा वधदा जांदा वड्डा हुंदा जांदा एज वी आर गोइंग टूवर्ड्स हैवी न्यूक्लियस। सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ न्यूक्लियर फोर्सिस ਆ इनक्रीज़ नहीं करदियां, एक सैचुरेशन पॉइंट एक मतलब स्थिरता आ जाती है एज A इज़ greater 40 ਤੇ जाके मतलब जो मास नंबर greater 40 हो जाता है तो उदों उस तो बाद ये सारियां कॉन्सटेंट हो जाती। सो स्पिन डिपेंडेंट नैक्सट प्रॉपर्टी हैगी है। सो न्यूक्लियर फोर्सिस है जो स्पिन पर डिपेंड करदियां ने, ठीक है। एक होंदा चार्ज इंडिपेंडेंट। सो दोनों चीज़ों को कन्फ्यूज़ नहीं होना, स्पिन पर डिपेंड करदियां ने और चार्ज पर इंडिपेंडेंट ने, ठीक है। सो न्यूक्लियर फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स हैविंग पैरेलल स्पिन इज स्ट्रोंगर दैन द फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स हैविंग एंटी पैरेलल स्पिन। मतलब जो पैरेलल स्पिन हैगी है तो जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेटर होएगी एज कंपेयर टू जो एंटी पैरेलल स्पिन है दोनों न्यूक्लियॉन्स के विच। फिर इसी तरह जी न्यूक्लियर फोर्स है स्ट्रोंग इन मतलब इसे करके ट्रिपलेट स्टेट में ज़्यादा होंगी है एज कंपेयर टू सिंगलेट स्टेट। आई होप तुहानूं क्लीयर हुई होणगियां चारों दी चारों प्रॉपर्टीज़। सो साडी नैक्सट प्रॉपर्टी हैगी है दैट इज़ फोर्सिस न्यूक्लियर फोर्सिस आर चार्ज इंडिपेंडेंट। सो चार्ज इंडिपेंडेंट है मतलब जोड़े न्यूक्लियस जिमें कि न्यूट्रॉन प्रोटोन ये सारे न्यूक्लियस के अंदर है। सो इदा तो है नहीं कि प्रोटोन में जी फोर्स है वो ज़्यादा लग रही है और न्यूट्रॉन में घट है, या फिर न्यूट्रॉन में ज़्यादा तो प्रोटोन में घट है। इस तरह का कोई मतलब फिनोमिनन है नहीं एग्जिस्ट करता। सो इस तो सानू की पता चलता है कि जी प्रोटोन में फोर्स है या न्यूट्रॉन में फोर्स है या फिर जी न्यूट्रॉन में फोर्स है वो सारियाँ इक्वल है, मतलब चार्ज से कोई डिपेंडेंसी नहीं हैगी न्यूक्लियर फोर्सिस की। सो नैक्सट इज़ नॉन सेंट्रल नेचर। असी पढ़ चुके हैं अगे जिहड़ियां स्ट्रोंग फोर्सिस होंदियां या न्यूक्लियर फोर्सिस होंदियां उन्हां दा नॉन सेंट्रल नेचर हुंदा है। सो नैक्सट प्रॉपर्टी हैगी है साडी एक्सचेंज नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सिस, मतलब न्यूक्लियर फोर्सिस आर ऑफ एक्सचेंज नेचर। सो आई होप थानू ये 7 या 7 प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां दे फीचर्स है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के चंगी तरह क्लीयर होए होणगे ते बाकी जिहड़े असी टॉपिक कीते वो भी वधिया तरीके नाल क्लीयर होए होणगे। अगर तुहानू कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। So like, share and subscribe करो इस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल टू गेट द नोटिफिकेशंस फ्रॉम एनी फर्दर अपलोड। सो एक गल है कि लाइक ज़रूर करया करो, बंदे नूं हौसला जा मिलता कि हाँ कोई देख रहा कोई सुन रहा अप्रीशीएशन मिल रही है। सो अगर तुहानूं पसंद आती है तो भी दस्या करो। अगर कोई डाउट है कोई मतलब नहीं वधिया लग रही या कोई चीज़ तुहानूं समझ नहीं आ रही तो भी कमेंट सैक्शन में ज़रूर दस्या करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।